dear children, how are you all? I hope you all are doing well. Welcome back to the new class, and in this class we are learning environmental fun for class 4th by Riddhi series and published by Children's Voice. So today we are going to start a new chapter, chapter number 7, and the name of our chapter is बीक्स एंड क्लॉज यानी कि चोंच और पंजे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। नाउ birds like all living things need food but they do not have teeth to eat and chew their food। यानी कि जो सभी बर्ड्स हैं उन्हें लिविंग बींग्स की तरह सरवाइव करने के लिए खाने की जरूरत होती है, पर उनके पास टीथ तो होते ही नहीं है जिससे वो अपने फूड को च्यू करेंगे। सो ऑल बर्ड्स हैव स्पेशल फीचर्स लाइक बीक्स, क्लॉज, विंग्स एंड फेदर्स। वहीं पर जो सभी बर्ड्स हैं उनके पास स्पेशल फीचर्स होते हैं, जैसे कि उनके पास बीक्स होती हैं, क्लॉज होते हैं, फेदर्स होते हैं और विंग्स होते हैं। We will now study about beaks and claws। अब हम beaks और claws के बारे में बात करेंगे। So first we will read about beaks। So birds use their beaks to eat food। वहीं पर जो सभी birds हैं वो अपनी चोंच का यूज करती हैं खाना खाने के लिए। They are used for defense and to gather material for the nest। वहीं पर अपने घोंसले के लिए सभी मटेरियल को इकट्ठा करने के लिए भी अपनी beaks का यूज करते हैं। They also use their beaks to smoothen their feathers। वहीं पर अपने feathers को स्मूथ करने के लिए भी अपनी beaks का यूज करते हैं। This is called preening। इसे हम क्या बोलते हैं? preening बोलते हैं। Different birds have different kinds of beaks। हर birds के पास अलग अलग तरीके की चोंच होती है। Their beaks are suited to the kind of food they eat। Now we will talk about types of beaks। यानी कि कितने प्रकार की beaks होती हैं। So first is a strong, sharp and hooked beaks। So birds like owl, eagle, vulture, hawk and kite have strong, sharp and hooked beaks which help to bite and tear the prey into small pieces। वहीं पर अगर हम बात करें आउल की, वल्चर की, हॉक की, तो इन सब के पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग, शार्प और हुक्ड बीक होती है जिससे ये अपने फ्लैश को इजीली टीयर कर सकते हैं। Second kind of beak we have short, thick and pointed beaks। यानी कि sparrow, pigeon, peacock and finch have short, thick and cone-shaped beaks to crush hard nuts, seeds and grains। वहीं पर अगर हम बात करें स्पैरो की, पिजन की, पिकॉक की, इन सब के पास छोटी चोंच होती है, बहुत ही पॉइंटेड होती है और बहुत ही पतली होती है जिससे ये किसी भी सीड्स या फिर ग्रेन को इजीली क्रश कर सकते हैं। सो थर्ड काइंड ऑफ बीक वी हैव long, slender and chisel shaped beaks। So woodpeckers have long and slender beaks tapering at the tip। It helps the woodpeckers to make holes and catch insects present in tree trunks। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ बर्ड्स ऐसी हैं जिनके पास बहुत ही लॉन्ग, स्लेंडर और चाइसल शेप्ड बीक होती है जिससे वो इजीली किसी भी पेड़ में होल कर सकती हैं और पेड़ के ट्रंक्स में जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं वो उन्हें इजीली खा सकती हैं। Now the fourth kind of beaks we have hooked beaks। So a parrot has a hooked or curved beak to crack nuts and hard fruits। वहीं पर जो पैरट है उसके पास बहुत ही हुक्ड बीक होती है जिससे वो किसी भी हार्ड नट या फिर हार्ड फ्रूट्स को इजीली क्रश कर सकता है। It resembles a nutcracker। This curved beak also helps it to climb। वहीं पर ये जो बीक है इसे क्लाइंब करने में भी हेल्प करती है। Now coming to the next kind of beak which we have, that is short and broad beak। छोटी होती है बीक लेकिन वो broad होती है, वो चौड़ी होती है। The swallow is a bird which has a very sticky mouth and tongue। उसका जो माउथ और टंग है बहुत ही ज्यादा स्टिकी होता है। These birds keep their beaks open while they fly during the flight। वहीं पर ये जो birds हैं अपनी बीक को ओपन रखती हैं जब ये फ्लाई करती हैं। So tiny flying insects get stuck in their mouth। वहीं पर जो बहुत ही टाइनी इंसेक्ट्स होते हैं, कीड़े मकोड़े होते हैं, वो उनके मुंह के अंदर आ जाते हैं। Then we have long and thin beaks। यानी कि लंबी और पतली चोंच होती हैं। So hoopoes and warblers have long and thin beaks which help them to pull out insects from their hiding places। वहीं पर बहुत ही लंबी और पतली चोंच होती है जिससे वो कहीं भी छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को इजीली ग्रैब कर सकते हैं। Then we have ब्रॉड एंड फ्लैट बीक्स। यानी कि बहुत ही चौड़ी और फ्लैट बीक्स होती हैं। So ducks and swans have broad and flat beaks with strainers all along the edges which allows water and mud to go out through it, living food, plants and insects। वहीं पर जो डक और स्वान्स होते हैं इनके पास
तो जितने भी हमारे पास डक्स या फिर स्वान हैं उनके पास बहुत ही फ्लैट और बहुत ही ब्रॉड चोंच होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बहुत ही फ्लैट है और ये बहुत ही ब्रॉड बीक है। देन वी हैव लॉन्ग स्लेंडर एंड पॉइंटेड बीक्स, यानी कि वो स्लेंडर होती हैं और पॉइंटेड भी होती हैं। सो बर्ड्स लाइक सन बर्ड्स, हमिंग बर्ड्स हैव लॉन्ग एंड स्लेंडर स्ट्रॉ लाइक बीक्स विच हेल्प्स टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स। वहीं पर आप इस इमेज में देख सकते हैं ये कितनी लंबी पॉइंटेड और स्लेंडर चोंच है इनके पास, जिससे ये इजीली किसी भी फूल से, किसी भी पत्ते से वो नेक्टर को सक कर सकती हैं, यानी कि उनके रस को चूस सकती हैं। Now we will talk about feet and claws of birds, यानी कि अब उनके पैर और उनके पंजे कैसे होते हैं। Birds have 2 to 4 toes on each foot, यानी कि हर बर्ड के पास कितने टोज होते हैं? 1 2 3 4 होते हैं। They use them to perch on branches. All birds have curved pointed nails called claws at the end of a bird's toe. वहीं पर आप देख पाएंगे इनकी टो के आगे कितने शार्प क्लोज होते हैं, जिससे किसी भी पेड़ पर या कहीं पर भी इजीली चढ़ सकते हैं। Birds use their claws to catch and hold their food. वहीं पर ये क्या करते हैं? अपने पंजों की हेल्प से अपने फूड को होल्ड करते हैं। To perch on branches, to move around, to scratch the ground or to protect themselves. ये पंजों से ही अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाते हैं या फिर ये पंजों की हेल्प से खुद को सेव करते हैं। They have feet adapted to the environment they live in and the food they eat. वहीं पर इनके जो फीट होते हैं वो अकॉर्डिंगली होते हैं, वो जहाँ रहते हैं और जैसा खाना वो खाते हैं। Different birds have different types of feet and claws. वहीं पर जो different birds हैं उनके पास different kinds of feet और claws होते हैं। Now perching claws, वहीं पर अब हम बात करेंगे perching claws के बारे में। Birds like crows, robins and sparrows have perching claws. वहीं पर आप देख सकते हैं जो sparrows होती है इनके पास कैसे claws होते हैं, इनके पंजे कैसे होते हैं, बहुत ही perching होते हैं। There are 3 toes in the front and 1 behind which curls around the branch to hold it firmly. वहीं पर इनके जो 3 क्लोज होते हैं वो आगे की तरफ होते हैं और 1 क्लो इनका पीछे की तरफ होता है, जिससे ये इजीली पेड़ पर बैठ सकते हैं और पंजों से खुद को होल्ड कर सकते हैं। It enables the bird to even sleep while perching. ये पर्चिंग करते हुए भी सो सकते हैं। Now climbing claws, अब हमारे पास आते हैं climbing claws. Woodpeckers and parrots have climbing claws. अब अगर बात करें woodpeckers की या फिर parrot की तो उनके पास climbing claws होते हैं। There are 2 toes in the front and 2 behind, enabling the bird to climb up, down and sideways on tree trunks. वहीं पर 2 पंजे आगे की तरफ होते हैं, 2 पंजे पीछे की तरफ होते हैं, जिससे ये इजीली किसी भी पेड़ के ट्रंक पर जाकर बैठ सकते हैं, उन पर चढ़ सकते हैं। Then we have grasping claws. So eagles, hawks and owls have such claws. वहीं पर जो eagles हैं, owls हैं, crows हैं, उनके पास grasping claws होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं grasping claws. The feet have large, इनके जो feet हैं वो बहुत ही large होते हैं। Curved claws called talons to catch, kill and carry prey. वहीं पर ये अपने पंजों में अपने भोजन को उठाकर ले जाते हैं। There are 3 toes in front and 1 behind. वहीं पर 3 toes इनके आगे की तरफ होते हैं, 1 पीछे की तरफ होता है। Now we have running claws. Fast running birds like ostriches have 2 toes rather than 4. इनके पास केवल 2 toes होते हैं, इनके पास 4 toes नहीं होते हैं। They have very strong legs which help them to run very fast. यानी कि इनके जो legs हैं वो बहुत ही ज़्यादा strong होते हैं, जिससे ये बहुत ही ज़्यादा fast run कर सकते हैं। Now we have swimming claws. Duck, pelicans and swans have webbed feet. There are 3 toes in the front and 1 small toe at the back. The feet work as oars while swimming. Now we have wading claws. So birds like cranes, storks and herons have long legs with toes that are spread out to help them walk easily in shallow water without any fear of sinking. जैसे ये पानी पर इजीली तैर सकते हैं, इन्हें डूबने का कोई भी डर नहीं होता है। Now we have stretching claws. Hens and pheasants have stretching claws. The claws are strong with 3 toes in the front and a short hard toe higher up the leg. वहीं पर इनके पास जो 3 toes हैं वो आगे की तरफ होते हैं और 1 toes इनका leg की तरफ higher होते हैं। They help to dig and scratch the ground to find food. जिससे ये ground को scratch कर सकते हैं और अपने food को search कर सकते हैं। Now come to the exercise part of this chapter. So first question we have,
Take the correct answer. The bird which eats grains, nuts and seeds, that is a sparrow. The bird which sucks the nectar of flowers, यानी कि फ्लावर्स के नेक्टर को कौन सी बर्ड सक करती है, that is sunbird. These birds have webbed feet, यानी कि webbed feet कौन सी बर्ड के पास होते हैं, वो होती हैं आपकी wading birds. Now talons are found in these birds. वहीं पर जो talons हैं वो कौन सी birds में होते हैं, जो talons हैं वो woodpeckers के अंदर पाए जाते हैं. Owls and vultures have these beaks. जो owls और vultures होते हैं उनके पास कैसी beaks होती हैं, trisel shaped की इनके पास beak होती हैं. Now coming to the second question. Give 2 examples for each of the following. यहाँ पर आपको कुछ birds बताए गए हैं, इन सभी birds के आपको 2 examples देने हैं. The third question we have match the followings. यहाँ पर आपको matchings करने हैं and I hope मेरे प्यारे बच्चों आप matchings easily कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास है आंसर द क्वेश्चंस, यानी कि कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको करने हैं. सो हाउ आर बीक्स यूजफुल टू बर्ड्स, वहीं पर जो सभी बर्ड्स हैं उनकी जो बीक हैं उनके लिए कैसे हेल्पफुल है. हाउ डू स्वेलोज कैच देयर फूड. देन वी हैव व्हाट डज अ बर्ड यूज इट्स क्लोज फॉर, वहीं पर जो बर्ड्स हैं वो अपने पंजों को किस लिए यूज करती हैं. What are talons? Talons क्या होते हैं. Why do herons have long legs? जो herons होते हैं उनके जो legs हैं वो बहुत ही ज़्यादा long क्यों होते हैं. एंड आई होप मेरे प्यारे बच्चों इन सभी क्वेश्चन के आंसर आप इजीली कर सकते हैं. अगर आपको एक ही बारी में याद नहीं रहा है कि कौन सी बर्ड्स कौन सी होती हैं, उनके पास कैसी बीक होती है और कैसे क्लोज होते हैं, तब आप अपनी बुक में जा सकते हैं, वहां से आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. आई होप आपने क्लास को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग विद मी. आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.